to today's class. In the last lecture, we were talking about stoichiometry. Stoichiometry gave us an idea how much of a reactant will be required when a given amount of second reactant is given. मान लेते हैं that there is a reaction in which we have two reactants. Then you are given the amount of any one of the reactant. Then the examiner is asking you what will be the amount required for the complete reaction of the other. Then the solution comes from stoichiometry, right? And during the stoichiometry we came to know that during a reaction there are two types of reagents. Reagent simply means reactants. Reactant को basically हम दो categories में divide करते हैं. पहला which is known as excess reagent. Excess means which is in large amount than the requirement. जरूरत से ज़्यादा वो क्या होगा? excess. Limiting जरूरत से कम. ठीक है? जो excess reagent है that does not get consumed 100% during the reaction, but limiting reagent gets consumed 100% during the reaction. Even in the last lecture we took an example of a factory of cycle production, and we told you that this is the limiting reagent which decide the amount of product formed. Even I am writing here that amount of product formed depends upon the limiting reagent. It clearly means that whenever examiner is asking you what will be the amount of the product formed, your first step will be to identify the limiting reagent, right? In case you are able to identify the limiting reagent, only then you will be able to answer what will be the amount of the product formed. Like in the previous example we were talking about N2 and H2, that is giving you ammonia, and 50 kg of nitrogen is mixed with 10 kg of hydrogen. Then the examiner asked you what will be the amount of ammonia formed. Actually this is the NCERT in-text question, right? Because he is asking you the amount of product formed. Okay? Then the step first will be to identify the limiting reagent, because the amount of product formed depends upon the limiting reagent. So apply stoichiometry to identify the limiting reagent. Stoichiometry states कि reaction को आप लिखें balance it, the stoichiometric coefficient जो ये multiply में होगा, that is the stoichiometric coefficient. And in the previous lecture I have told you that stoichiometric coefficient of a balanced chemical equation indicates the how many moles of any reactant will be used. How many moles, I am repeating. Here 1 is written, it means 1 mole. Here 3 is written, means 3 mole. Here coefficient is 2, it stands for 2 moles. It clearly means when 1 mole of nitrogen react with 3 mole of hydrogen, it produce 2 moles of ammonia. ठीक है? स्टोइचोमेट्री ने हमें क्या बताया कि for every 1 mole of nitrogen I will require 3 moles of hydrogen. For every 1 mole of nitrogen I will require 3 moles of hydrogen, and when 1 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen react, what they gave 2 moles of ammonia, right? So first step is find out the limiting reagent. Then what it means, from the stoichiometry I know 1 mole of nitrogen simply means 28 gram of N2. 1 mole means 28 gram, and here 3 moles means 6 gram, क्योंकि टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 AMU. तो 28 gram of nitrogen react with 6 gram of hydrogen, and it gives you 2 moles of ammonia. 2 moles of ammonia means 34 gram of ammonia. ठीक है? Even law of conservation of mass is being followed here. 28 plus 6, answer is going to be 34, and ammonia produced is again 34 gram, right? तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? I will say that for 6 gram of hydrogen we require 28 gram of nitrogen. For 1 gram of hydrogen we require 28 divided by 6 gram of nitrogen, and for 10 kg of hydrogen
10 kg of H2 we require 28 डिवाइड बाय 6, ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में, देन मल्टीप्लाई बाय 10 किलोग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, राइट। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 28 को 6 से, तो ये कितना आएगा 4, 6 4 से 24, 6 4.6 मल्टीप्लाई 10 किलोग्राम, इट मीन्स 46 किलोग्राम। ठीक है, और अगर मैं इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक लेके जाऊंगा तो कितना आएगा 4.66, यानी कि 46.6 किलोग्राम। ठीक है, 46.6 किलोग्राम ऑफ N2 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब जरूरत कितने की है देखें, जरूरत है 46.6, बट N2 गिवन इज 50 किलोग्राम। कि दे कितना रखा है 50 किलोग्राम, मींस एक्सेस में है भाई। जरूरत तो 46.6 की है लेकिन दिया कितना 50 है, जरूरत से ज्यादा है, मींस ये क्या हो गया मेरे पास एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन तो 10 के 10 kg कंज्यूम हो जाएगा, इट मींस हाइड्रोजन H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, H2 is limiting reagent. And again the point comes here that amount of product formed depends upon the limiting reagent. Limiting reagent मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है और वो क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखो अगर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होता तो कितना बनता 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, यानी कि when 6 ग्राम of hydrogen reacts, amount of ammonia formed is 34 ग्राम। ठीक है ना, अगर ये 6 ग्राम है तो ये कितना बनता है 34 बनता है। अगर ये 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होता तो अमोनिया फॉर्म्ड इज 34 डिवाइड बाय 6, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करने वाला है 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स, अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड इज 34 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 kg। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.66 मल्टीप्लाई 10, या फिर आई कैन से 56.6 किलोग्राम। दिस इज योर आंसर। यानी कि अमोनिया यहाँ पर कितना बनेगा, अमोनिया बनेगा आपके पास 56.6 किलोग्राम। या फिर आप इसको देखो, इतना ज्यादा ना सॉल्व करके यहाँ से मैं एक और कंक्लूजन निकाल सकता था। कंक्लूजन ये निकाल सकता था कि भाई स्टोइचियोमेट्री ने मुझे बताया कि इफ आई हैव 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर मेरे पास 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो अमोनिया कितना रिएक्ट करेगा 46.6 ही रिएक्ट करेगा, सॉरी नाइट्रोजन कितना रिएक्ट करेगा 46, मतलब 10 किलोग्राम तो हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ही करेगा, उसके साथ नाइट्रोजन कितना करेगा 46.6, यानी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट which consumed कि 10 किलोग्राम क्या है हाइड्रोजन, और अमोनिया 50 में से कीमत तो कितना है 50 में से रिएक्ट कितना करेगा 46.6 किलोग्राम ऑफ N2, तो यहाँ से टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 56.6 किलोग्राम। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass, we say कि amount of reactant will be equal to amount of product। अब reactant कितना यूज हुआ 56.6, तो ये किसी के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा amount of product।
अमोनिया यहाँ से भी मेरे पास आंसर कितना आता, 56.6 ही आता. Either you can adopt this method or simply you can adopt this method also. ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमें क्या बताएगा, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि आपके पास प्रोडक्ट कितना बनने वाला है. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चंस. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर. वी विल मूव ऑन. We have two numericals here. Both are from NCERT. This is your NCERT back exercise question number 1.4 and this is your NCERT back exercise question number 1.23, right? Because soon we are going to conduct an assessment test for you all and the questions in the assessment test is going to be from NCERT only. So you guys are supposed to solve NCERT thoroughly, right? So here we have first question. First I will solve this 1.23 in a reaction A plus B2 giving you AB2, right? Identify the limiting reagent in each of the following in case if any. ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन को मैं फिर से लिखता हूँ A plus B2 giving me AB2. स्टोइचोमेट्री को सबसे पहले देखिए आप. स्टोइचोमेट्री स्टेट्स यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1 और यहाँ पर भी क्या है 1. यहाँ 1 का मतलब है 1 मोल ऑफ A, 1 मोल ऑफ A. यहाँ का मतलब है 1 मोल B और यहाँ पे क्या मतलब है 1 मोल ऑफ AB2. 1 मोल का मतलब हो गया कि यहाँ पर कितने एटम्स हैं 6.022 10 raised to the power 23 एटम्स. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6.022 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल. ठीक है, और AB2 भी क्या कहेगा 6.022 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल. ठीक है, why I am converting into number of molecules because in the various parts either it is talking about in the terms of atoms or in the terms of moles. ठीक है, तो मैं दो ही यहाँ पर लिख रहा हूँ. अब यहाँ पर देखें कि 6.022 एटम अगर मैं A के लेता हूँ तो B2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं. इसका क्या सिंपली मतलब मैं निकाल सकता हूँ कि इसका 1 एटम ऑफ A react with 1 molecule of B और यहाँ पर I can say 1 molecule of AB2. ठीक है, जिनको मेरी ये बात नहीं समझ आती तो वो यहाँ पर सिंपली एक बात सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पर भी 6.022 10 raised to the power 23 मुझे दिखाई दिया, यहाँ भी दिखाई दिया, यहाँ भी दिखाई दिया, तो मैंने तीनों को जो है 6.022 into 10 raised to the power 23 से डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ भी कितना आएगा 1. लेकिन A क्या है, एटम है, B2 क्या है, मॉलिक्यूल है. कैसे पता चला कि दो B आपस में जुड़े हुए हैं, दो B आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो क्या बनता है, ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. और AB2 तो अपने आप में मॉलिक्यूल है. ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज नॉट मॉल, दिस इज मॉलिक्यूल. नाउ द क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, राइट? द फर्स्ट पार्ट स्टेट्स 300 एटम ऑफ 200 विद 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B. अगर इसका एक एटम है तो इसका भी मुझे कितना चाहिए, एक मॉलिक्यूल चाहिए. अगर इसके दो होते तो यहाँ पर भी कितना होता 2. अगर यहाँ 10 होता तो यहाँ भी कितना होता 10. अगर यहाँ 100 है तो यहाँ भी कितना होता 100. अगर यहाँ कितना है 300, अगर मैं लेता हूँ 300 एटम्स ऑफ A तो मुझे B के भी कितने चाहिए, 300 मॉलिक्यूल चाहिए. ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में कि सिंस 1 atom of A require 1 atom of B, 1 molecule of B, so for 300 atoms of A we require 300 molecules of B.
दिया 200 है, यानी कि जरूरत से कम, सो B इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। आपके पास जो B है वो क्या आ जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। ठीक है, B विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट। फिर से देखते हैं, देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट कहता है इसके 2 मोल ऑफ A, इसके 3 मोल ऑफ B। लेकिन देखो ना, यहाँ पे कितना है 1 मोल, यहाँ पर भी कितना है 1 मोल, यानी कि अगर यहाँ पर 2 होता है तो यहाँ पर भी कितना है 2 है। अगर 1 है तो ये भी 1 है, अगर ये 2 हुआ तो ये भी कितना होना चाहिए 2, यानी कि फॉर 2 मोल्स ऑफ A मुझे B कितना चाहिए 2 मोल चाहिए, लेकिन दिया कितना है 3 है, 3 मोल्स ऑफ B, जबकि रिक्वायरमेंट कितने की है, रिक्वायर्ड इज 2 मोल्स। कहां से पता चल रहा है, ये पता चल रहा है स्टोइचोमेट्री से कि भाई अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, यानी कि दिया कितना है, जरूरत 2 की है, यहाँ पर 2 की बजाय दिया क्या है 3 है, रिक्वायरमेंट 2 की है, गिवन 3 है, जरूरत से ज्यादा दिया हुआ है, तो इसका मतलब है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आ जाएगा, दिस विल बी अ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ए क्या आ जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। ऐसे ही आप समझे, देखो यहाँ पर अगर एक एटम है, थर्ड पार्ट में मैं रहा हूं, अगर यहाँ पर एक एटम है तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ 2 होंगे तो यहाँ पर भी 2, यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10, यहाँ 100 है तो यहाँ पर भी 100 ही जरूरत है, यानी कि 100 एटम्स ऑफ ए रिएक्ट विद 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों 100% कंज्यूम हो जाएंगे। इट मींस नो एनी लिमिटिंग रिएजेंट, नो एनी लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, फिर से समझते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है 5 मोल ऑफ ए, अगर ये 1 मोल है तो ये भी कितना है 1 है, ये 2 होगा तो ये भी कितना होगा 2, अगर ये 5 है तो ये भी कितना होना चाहिए 5, यानी कि जरूरत कितने की है 5 की, और दिया कितना है, रिक्वायर्ड इज 5 मोल, जबकि है कितना 2.5, तो B क्या हो जाएगा मेरे पास, B विल बी माय लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पर कौन सा आया A, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का आया B आया, क्यों आया, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितने की थी 5 मोल की थी, लेकिन जरूरत से कम है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये 2.5 है तो B भी कितना होना चाहिए 2.5, लेकिन यहाँ पर B जो है रिक्वायर्ड 2.5 मोल। ठीक है, जरूरत से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, B क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, और A क्या हो जाएगा, A विल बी माय लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक ही बनता है कि पहले आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस रिएक्शन में स्टोइचोमेट्री समझ लो कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, अगर ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा, अगर ये 200 है तो ये भी 200 है। भाई जो चीज जरूरत से ज्यादा दी होगी वो एक्सेस होगी, वो बच जाएगी, जो चीज जरूरत से कम होगी वो लिमिटिंग हो जाएगी, एंड दैट लिमिटिंग विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, देखो फिर से आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4। अब ये क्वेश्चन को आप समझेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगा। अब ये क्या कहते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। फिर से देखो क्या बताना है, CO2 प्रोड्यूस्ड बताना है, तो प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्शन डिपेंड करती है लिमिटिंग रिएजेंट पर, यानी कि इस केस में आपको सबसे पहले किस बात को फाइंड आउट करना पड़ेगा, किस चीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट को। गॉट माय पॉइंट, यू विल हैव टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए सबसे पहले क्या लिखें, आप रिएक्शन को बैलेंस करें, अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ C इज बर्न्ड इन एयर, तो C प्लस O2 दैट इज गिविंग यू CO2। ठीक है, तो इसके स्टोइचोमेट्री समझ लो कि इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 1, यानी कि ये हो गया 1 मोल, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 1, तो इसका मतलब हो गया 1 मोल, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है 1, यानी कि 1 मोल। 1 मोल का मतलब सीधा सीधा यहाँ कितना आ गया 44 ग्राम। कैसे, CO2 का मॉलिक्यूलर मास, भाई 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, तो जो मोल कॉन्सेप्ट में सीखा था वही लगा रहा हूँ। 1 मोल यहाँ पर कितना आ गया 44 ग्राम। अब यहाँ पर 1 मोल का मतलब कितना हो गया 32 ग्राम। एक
एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ऑक्सीजन कितने हैं 2 तो 16 2 32 और एक कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अब फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट कहता है 1 मोल ऑफ सी इज बर्न्ड इन एयर। एयर जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एयर बहुत ज्यादा है। ठीक है, एयर ज्यादा है तो एयर सीधा सीधा क्या हो गया आपके पास एक्सेस रिएजेंट हो गया। लेकिन 1 मोल ऑफ सी, सी यहाँ का फिक्स अमाउंट है, एयर बहुत ज्यादा है तो कार्बन क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि फर्स्ट पार्ट में लिमिटिंग रिएजेंट इज C. So amount of CO2 will depend upon amount of C। ठीक है, तो यहाँ पर C देखो, अगर C 1 मोल है, 1 मोल है तो यहाँ पर ये कितना बनता है, ये बनता है 1 मोल। अगर ये 1 है तो ये 1 है ना, अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल है, या फिर अगर ये 1 मोल है तो ये कितना बनता है 44 ग्राम। आप इसको 1 मोल लिखें या 44 ग्राम लिखें, यानी कि when 1 mole of C is burned, amount of CO2 is either 1 mole और 44 ग्राम। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 मोल भी आंसर लिख सकते हैं और 44 ग्राम भी आंसर आप लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट इज क्वाइट इजी। वो कहता है 1 मोल ऑफ सी इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ O2। लेकिन देखो कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन के ये अगर 1 मोल है, इफ दिस इज योर 1 मोल तो ये कितना है 32 ग्राम। यानी कि 1 मोल ऑफ C require 32 ग्राम ऑफ O2। लेकिन यहां पर गिवन क्या है, यहां पर गिवन है 16 ग्राम, बट गिवन O2 16 ग्राम। 16 ग्राम जरूरत कितने की है 32 ग्राम की, दिया कितना है 16 ग्राम। सो इट मींस O2 क्या हो गया, O2 हो गया मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो अगर ये 32 ग्राम है तो ये कितना बनता है 44 ग्राम। ठीक है, आई विल राइट 32 ग्राम ऑफ O2 गिव 44 ग्राम ऑफ CO2। अगर यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ O2 होता तो वो कितना बनता 44 डिवाइड बाय 32, और यहाँ पर कितना है 16 ग्राम, 16 ग्राम ऑफ O2 विल गिव मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये कितना आ जाएगा 22 ग्राम, 22 ग्राम ऑफ CO2। कितना बन जाएगा आपके पास 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो 22 इज द आंसर। अब हमारे पास बच गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी देखो 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ O2। 2 मोल है, अगर ये 1 मोल है तो ये कितना चाहिए आपको 32 ग्राम चाहिए। अगर ये 2 मोल हो गया तो ये भी तो ट्वाइस करना पड़ेगा ना, अगर ये 1 था तो ये 1 था, अगर ये 2 है तो ये भी क्या होना चाहिए 2 का मतलब हो गया 64 ग्राम। लेकिन जरूरत 64 की है, गिवन कितना है 16 है, जरूरत से कम, तो B2 भी इस केस में फिर से O2 क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अगर O2 आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म विल डिपेंड अपॉन द CO2। O2 पे तो पहले की जैसे सेकंड हमने पार्ट इसको सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पास इसका क्या आ जाएगा थर्ड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सो यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट हियर। We are moving on. We have 3 more numericals based on limiting reagent. First one we have N2 plus 3S2 that gives you 2NS3, ammonia की production है। This is NCERT exercise 1.2 for question number. We are supposed to tell amount of ammonia produced, right? Amount of ammonia produced. Because he is asking you amount of ammonia,
then amount of the product depends upon the limiting reagent. Means first you will have to calculate the limiting reagent. Limiting reagent calculate कैसे करेंगे, देखें कि हमारे पास है N2 plus 3H2 that gives you 2NH3. इसका stoichiometric coefficient is 1. 1 stands for 1 mole. Here 3 means 3 mole. Here 2 means 2 mole. 1 mole of N2 stands for 28 gram. ठीक है, 3 moles of H2 stands for 6 gram and 2 moles of ammonia stands for 34 gram. What we are supposed to tell? We are supposed to tell amount of NH3. Now what I will say is that for every 6 gram of hydrogen you will require 28 gram. 6 gram of H2 reacts with 28 gram of N2. So 1 gram of H2 reacts with 28 divided by 6, and here you are given 1 into 10 raised to the power 3 gram. 1 into 10 raised to the power 3 gram simply means 1 kilogram. 1 kilogram of H2 reacts with 28 divided by 6 multiplied by 1 kg, या simply you can say 4.6 kgs. So amount of nitrogen required is 4.6 kg, लेकिन amount of nitrogen is 2 kgs. 2 into 10 raised to power 3 gram मतलब 2 kgs. So it means N2 is limiting reagent. N2 is limiting reagent. So amount of ammonia produced will depend upon amount of nitrogen. ठीक है, मतलब जरूरत इतने की थी, ये जरूरत से कम है, तो ये 100% कंज्यूम हो जाने वाला है. Now what I will say is, I will say कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन होता तो अमोनिया कितना बनता? 38 ग्राम. For 28 ग्राम of N2, NH3 जो प्रोड्यूस होता, produced will be 34 ग्राम. तो 1 ग्राम ऑफ N2 अगर आपके पास है तो अमोनिया कितना बनता? 34 डिवाइड बाय 28. और अब आपके पास कितना है? आपके पास नाइट्रोजन है 2 kgs. 2 kg of N2 produced is 34 divided by 28 multiplied by 2 kg. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? अमोनिया प्रोड्यूस्ड. सेकंड पार्ट देखें, will any of the two remains unreacted? आंसर इज यस. कि भाई देखो, अगर 1 kg हाइड्रोजन को पूरे तरीके से रिएक्ट कराना है तो आपके पास कितना चाहिए? नाइट्रोजन 4.6. जैसे ही नाइट्रोजन 2 kg कंज्यूम होगा तो हाइड्रोजन की रिएक्शन रुक जाएगी. भाई रिएक्शन कंप्लीट कब होती? जब 4.6 होता, लेकिन दिया कितना है? 2. तो जैसे ही 2 kg नाइट्रोजन पूरे तरीके से खत्म होगा, हाइड्रोजन बच जाएगा. ठीक है, तो हाइड्रोजन बच जाएगा. Will any of the two remains unreacted? Answer is yes. कौन सा? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कैसे? तो इसी में मैं लिखता कि भाई देखो, यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके पास 28 ग्राम नाइट्रोजन होती तो कितना बनता मेरे पास? 6 ग्राम. अगर अब आपके पास कितना है? 2 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन. जैसे यहाँ निकाला ना हमने, हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन निकाला कि भाई अगर आपके पास 1 kg हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन कितना लगेगा. ऐसे ही मैं इसका रिवर्स कर दूंगा कि 2 kg नाइट्रोजन के लिए मैं निकालूंगा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन. तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आते ही आपको पता चल जाएगा कि 2 kg नाइट्रोजन कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा. जिसको मेरी बात नहीं समझ आ रही, मैं उसको बड़ा सिंपल सा यहाँ करके दिखा सकता हूँ कि स्टोइचोमेट्री ने ही मुझे समझाया कि अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन होती तो नाइट्रोजन कितना लगता? 28. या फिर इसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ कि 28 ग्राम ऑफ N2 reacts with 6 ग्राम ऑफ H2. ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ N2 reacts with 6 divided by 28. अब नाइट्रोजन है कितना? 2 kg. 2 kg के लिए आप निकालें तो 6 डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 2 kg. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड. कि भाई इतनी तो कंज्यूम हो जाएगी.
अब उसने कंज्यूम नहीं पूछा, उसने पूछा है कि कौन सा अनकंज्यूम रहेगा। आंसर इज हाइड्रोजन अनकंज्यूम रहेगा। कितना, कि भाई कंज्यूम हुआ इतना, टोटल है मेरे पास इतना, 1 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा। ठीक है भाई, टोटल अमाउंट ये था, इसमें से इतना मैंने खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना, कि टोटल में से ये माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, अनरिएक्टेड अमाउंट आ जाएगा। सो दिस इज एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.2। अब देखो, इसको मैं और भी छोटा कर सकता था। इसको मैं छोटा कैसे कर सकता था कि भाई यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने 6 ग्राम हाइड्रोजन किया ना, अगर आप यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे ना फाइंड आउट करके सीधा सीधा ऐसे फाइंड आउट कर देते तो आपके पास न्यूमेरिकल थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाता है, 2H2 plus O2 दैट इज गिविंग यू अमोनिया। अब वो कहता है कि इसका 10 वॉल्यूम है और इसका 5 वॉल्यूम है, तो बताओ सॉरी वाटर, इसका वाटर का अमाउंट कितना बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए स्टोइचोमेट्री देखो क्या कहती है कि भाई इसका 2 मोल, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल। ठीक है भाई, 2 moles of hydrogen will react with 1 mole of hydrogen to give 2 moles of water। 1 मोल का मतलब है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, और यहाँ 2 मोल का मतलब है कि 44.8 लीटर्स। कि भाई 1 लीटर का तो कितना है 22.4, तो 2 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 44.8। तो यहाँ से आपके पास ये कितना बन के आता है, ये बन के आता है 44.8 लीटर्स। अगर मैं इन तीनों को 22.4 से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब है ये 2 लीटर, ये 1 लीटर, और ये भी कितना आ जाता 2 लीटर। या फिर मैं सिंपली कह सकता हूँ इसका 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, तो ये कितना बनता 2 वॉल्यूम। अगर आपके पास ये कितना आ जाए 5 वॉल्यूम आ जाए, तो ये कितना आ जाएगा 10 वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 5 वॉल्यूम है तो ये कितना बनने वाला है 2 वॉल्यूम। ठीक है, कहाँ से निकाल रहे हैं हम आंसर, हम आंसर निकाल रहे हैं स्टोइचोमेट्री से। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या आनी चाहिए, आपको सबसे पहले आनी चाहिए स्टोइचोमेट्री। ठीक है, लेट्स कम टू द थर्ड न्यूमेरिकल, 4HCl plus MnO2, it is giving me 2H2O plus MnCl2 plus Cl2. Now I am having how many gram HCl react with 5 gram of MnO2 और molecular mass of 7। तो यहाँ स्टोइचोमेट्री से समझो कि HCl कितना है, HCl है आपके पास 4 मोल। ठीक है, और एक HCl का मोलिकुलर मास कितना है 36.5। भाई क्लोरीन का होता है 35.5, हाइड्रोजन का +1, तो टोटल कितना हो गया 36.5, 4 मल्टीप्लाई 36.5। और MnO2 कितना है, MnO2 है 1 मोल। 1 मोल का मतलब है आपके पास 87 ग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या बताना है HCl कितने ग्राम चाहिए, तो मैं यहाँ कहूँगा कि 87 ग्राम ऑफ MnO2 reacts with 4 into 36.5 ग्राम HCl। कि HCl मुझे इतना चाहिए, अगर 1 ग्राम ऑफ MnO2 होता तो कितना आता 4 मल्टीप्लाई 36.5 डिवाइड बाय 87। अब कितना दिया है 5 ग्राम दिया है, तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी अमाउंट ऑफ HCl जो हमें चाहिए, एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सो दीज आर योर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्टोइचोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का जो न्यूमेरिकल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट को हम बहुत आगे जब केमिस्ट्री में मूव करेंगे अगले चैप्टर्स में, तो वहाँ पर हम इसको बार बार यूज़ भी करते हैं। सो बी केयरफुल हियर कि आपको जो है स्टोइचोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट आना ही चाहिए। और स्टोइचोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के लिए जो सबसे मेन और बेसिक बात है वो क्या है आपके पास, वो है कि आपको पता होना
होना चाहिए कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 रेज टू द पावर 23 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 रेज टू पावर 23 एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और इनका मास किसके इक्वल होगा? अगर एटम हो तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एंड इनका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर्स। ठीक है, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू फिनिश दिस टॉपिक, क्योंकि आगे हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा एक आर्टिकल बच जाता है इस चैप्टर में, दैट इज ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को हम नेक्स्ट टाइम एक ही लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। आई होप यू आर फॉलोइंग द वीडियोज रेगुलरली। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत कंटिन्यूस रखें एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर असेसमेंट टेस्ट। सून यू विल गेट योर असेसमेंट टेस्ट। ठीक है, तो पूरी ईमानदारी से वो टेस्ट करना है ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि भाई असेसमेंट टेस्ट के लिए सिलेबस क्या है? सिलेबस बड़ा सिंपल सा है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाला जो चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, वो पूरा चैप्टर आने वाला है। ठीक है, तो आपको वो चैप्टर रिवाइज करना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑल द वेरी बेस्ट।